हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान रिसर्च सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं जीन क्लोनिंग्स एंड जीन बैंक। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीन्स क्लोनिंग एंड जीन्स बैंक। The term clone is the collective term of genetical identical individual. You have probably heard about a sheep is named Dolly, which is possessed by the same genes as his mother, as she was a clone with the mother. That is the most important for the Dolly. Dolly is the first experiment of genetical identical. There is the first clone of Dolly. In the Russell Institute of Scotland is a land with Mott is a cloning Dolly. The sheaves from a Dolly's mother is a 1996. If there is a nucleus from a cell from a Dolly's mother is a udder mammary gland was introduced into the egg of another evil female sheep. Was the nucleus was removed and this cell divided to give a more cell which formed a embryo. There is could be implanted into the uterus to the another evil a surrogate mother. That is the most important experiment for the Dolly. And there is the production of a large quantity of identical genes called gene cloning. Since there is a gene is a segment of DNA having a particular sequence of 4 nitrogen base. So I have already learned that AT and GC. There is the most important for the particular sequence on the AT and CG. There are multiple copies of particle genes may be obtained for means to the recombinant DNA technology. That is called to the recombinant DNA technology. The popular known as the genetical engineering. That is also called to genetic engineering. You will be learn more about the genetical engineering later in the lesson. And the next is gene bank. So what do you mean to the gene bank? The various clone of bacteria carrying the desired gene in their DNA can be stored on perceive at a very low temperature for their future use. In a gene bank, a genes bank of a gene libraries or DNA library, it is thus the collection of bacteria. Bacteria for this virus cloning, and each clone is carry specific DNA segment, mean genes from to another organism. For example, a human genes code from to the hormone insulin may be inserted to through the genetical engineering into a bacteriums. When the bacteriums is multiplied, it form a clone of bacteria carrying the genes for insulin and may to be preserved in the gene bank. Thus, the clone from a gene bank may be used for the producing large quantity of contain enzymes, hormone, and vaccine. That is called gene bank. The gene bank is the most important for further there is enzymatics, hormone, and vaccine. There are quantity of the contain. There are producing of enzyme, hormone, and vaccine. That is called gene bank. ये दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया जीन क्लोनिंग्स एंड जीन बैंक। कहते हैं क्लोन आनुवंशिक रूप से अभिन्न यानी समरूप विशिष्टों के लिए प्रयुक्त जो है सामूहिक परिभाषा शब्द है। आपने डॉली नामक भेड़ का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बहुत ही एक्सपेरिमेंट देखने को मिला था। इसमें अपनी माँ को समान ही जीन थे, क्योंकि इसे इनकी माँ से क्लोन किया गया था, यानी माँ से इसको बनाया गया था और इसे डॉली नाम दिया गया। साइंस का सबसे बड़ा चमत्कार जो था डॉली ही थी। ठीक है, स्कॉट लैंग ऑरिजिन्स में जो है ये वेल विस्मट ने डॉली वेयर को 1996 में इसकी माँ से क्लोन किया था। ठीक है, डॉली की माँ के स्तन ग्रंथियों के जो है प्राप्त एक कोशिकाओं के केंद्रक को दूसरी मादा वेर के अंड में प्रवेश कराया गया, जिसका केंद्रक हटा दिया गया और इस कोशिका ने जो है विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं प्रदान की, जिन्हें एक भ्रूण निर्मित किया गया, जिसे एक दूसरे जो है खुलदारी यानी सर्जिलेट भेड़ के गर्भाशय में स्थापित आरोपित कर दिया गया। तो इस प्रकार जो है डॉली नाम की जो है भेड़ का उत्पन्न हुआ। तो इससे जो है साइंस में बहुत बड़ा चमत्कार ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये कोशिका के द्वारा उत्पन्न किया गया डॉली थी। तो आप समझ सकते हो कि हम जहाँ पर स्पर्म लेते हैं, जहाँ पर हमें ओवरी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर सिर्फ जो डॉली की माँ के स्तन ग्रंथियों से प्राप्त एक कोशिका केंद्रक को दूसरी मादा के भेड़ के अंड में प्रवेश करा दिया गया। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी कहते हैं चमत्कार से कम नहीं था।
क्योंकि इससे जो था हम क्लोनिंग कर सकते हैं। यानी आने वाला टाइम में ये देखना विनाशकारी भी होगा और कुछ लाभकारी भी होगा, क्योंकि हम कहते हैं नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव साथ नेगेटिव लेना हम नहीं भूलते हैं। तो ये आने वाला समय में हो सकता है कि इसका डिसएडवांटेज भी देखने को आपको मिले। उसके बाद कहते हैं कि ये जीनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन जीन क्लोनिंग कहलाया, क्योंकि कोई भी जीन डीएनए का एक खंड है जिसमें 4 जो है नाइट्रेट बेस यानी ATGC ये तो पाया ही जाता है। आपको पता है कि डीएनए में जो है ATCG के बारे में हमने बहुत ही चर्चा किया है। एडेनोसाइन, ट्राइनोसाइन, ग्लूटामाइन, साइटोसाइंस होता है, ये का एक विशेष अनुक्रम होता है। और कहते हैं पुनर्योजन डीएनए जो है प्रौद्योगिक जीन अनुवांशिक अभियांत्रिकों के नाम से भी जाना जाता है कि सहायता के एक जीन को अनेक प्रतिलिपियों प्राप्त किया जा सकता है। आप इस पार्ट में जो है अनुवांशिकी यांत्रिकों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करोगे और जानोगे कि किस प्रकार जो है डीएनए अनुवांशिकता में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब हमारे समक्ष आता है जीन बैंक। आखिर जीन बैंक होती क्या है? देखिए दोस्तों, अगर हम जीन बैंक की बात करें तो आपको पता है कि आपने डीएनए में इंचित वंदरित जीन के वाहक बैक्टीरिया के अनेक क्लोन जो है निम्न तापमान पर भविष्य में प्रयोग हेतु संग्रहित और सुरक्षित किए जा सकते हैं। लेकिन आप परीक्षित किए जा सकते हैं और एक जीन बैंक या जीन लाइब्रेरी या एक डीएनए लाइब्रेरी जो है जीवाणु और जो है विजाणु भोजी यानी विषाणु क्लोन का संग्रह ही है। प्रत्येक क्लोन दूसरे जीव में अवशिष्ट डीएनए खंड का एक वहन करता है। उदाहरण के लिए अगर इंसुलिन हार्मोन के लिए कुटिस करने वाला मानव जीन अनुवांशिक यानी अभियांत्रिक द्वारा एक जीवाणु में प्रवेश कराया जा सकता है। जब एक बैक्टीरिया जो होती है मल्टीप्लाई करती है तो ये इंसुलिन के लिए जीन का वहन करने वाले बैक्टीरिया का एक क्लोन निर्मित करता है और इसे ही जीन बैंक सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी इसको जो है हम कई टाइम तक जो है इसको सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार जीन बैंक के क्लोन के विषय में जो है कार्मिक हार्मोन और निकोटीन वैक्सीन की बड़ी मात्रा उत्पन्न करने में प्रयोग भी किया जा सकता है। देखिए कुछ जीव होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अगर उनको हम जेनेटिकल जीन्स रख लें, अगर जीन बैंक में संरक्षित कर दें तो आने वाला समय में हो सकता है कि इसका उपयोग किया जा सकता है और इससे हम कई चीज़ों का जो है आविष्कार भी करने योग्य रह सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जीन बैंक। तो ये आने वाले भविष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। तो इसमें बहुत से जीन लाइब्रेरी बनाए गए हैं और डीएनए लाइब्रेरी भी बनाया गया है जहाँ पर इन चीज़ों को रखा जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें हम फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है लिंक कॉपी करके लगाना मत भूलिएगा।